अच्छा बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था विद जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स, और हमने ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट स्टार्ट करने थे। तो ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। Firstly, we will see the effect of inhaled anesthetics at cardiovascular system. As you know that these are the inhaled anesthetic agents, and that agents are halothane and fluorine, isoflurane, desflurane and sevoflurane. All these agents are having depressing effect at cardiac contractility. As a result, all volatile agents tend to decrease mean arterial pressure in direct proportion to their alveolar concentration. यानी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, एल्वियोलाई में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिप्रेस होती जाएगी. Isoflurane, desflurane and sevoflurane produce greater vasodilating effect with minimal effect on cardiac output. So if you have patient with heart failure, then preferably you should give isoflurane, desflurane and sevoflurane, because these agents are having the less effect at the cardiac output, because these agents are having more cardiac output when you use these agents. Now, if you see the nitrous oxide, it is also having depressing effect at myocardium in the concentration dependent manner. Again, concentration को increase करेंगे nitrous oxide की तो cardiac जो contractility है वो depress होती जाएगी. And this depression may be opposed by concomitant activation of sympathetic nervous system, resulting in preservation of cardiac output. अब आप देखिए कि अगर इसका डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेसिंग इफेक्ट है तो एक और इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड का है कि ये रिफ्लेक्स जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगी गैस. तो उसका क्या होगा कि उसमें बैलेंस हो जाएगा. एक तो डायरेक्ट जो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है और इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे. So the administration of nitrous oxide in combination with more potent volatile anesthetics and minimize the circulatory depressant effects by both anesthetic sparing and sympathetic activity action. यानी आप nitrous oxide को inhaled anesthetic जो दूसरे agents हैं उनके साथ combine करके दे सकते हैं. अगर कॉम्बिनेशन फॉर्म में देंगे तो इसका जो डिप्रेसिंग इफेक्ट है जो दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट्स का है वो नलिफाई हो जाएगा. ठीक है. नाइट्रस ऑक्साइड को हम अलोन भी देते हैं और विद इन कॉम्बिनेशन विद अदर इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ भी देते हैं. देन नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन हार्ट रेट. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हार्ट रेट व्हेन यू आर यूजिंग these inhaled anesthetic agents? These agents are basically causes increase in the heart rate by activation of the sympathetic release from the central nervous system. ठीक है. तो जो heart rate है वो increase हो जाएगी. Increase the heart rate because they cause less depression of the baroreceptor reflex. ठीक है. इन दोनों agents का जो है वो baroreceptor reflex जो एक्शन होता है उस पे लेस वो डिप्रेशन कॉज करते हैं और सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे कार्डियक रेट को. देन desflurane can trigger the transient sympathetic activation with elevated catecholamine level. एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि हेलोथेन और जो अदर एजेंट्स हैं वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स, दे सेंसिटाइज द मायोकार्डियम टू एपिनेफ्रिन एंड सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स. यानी मायोकार्डियम की सेंसिटिविटी टू द एक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग कैटेकोलामीन्स इंक्रीज करेंगे. उससे क्या होगा, उस इफेक्ट से देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग द एरिथमियास. ठीक है. जब कोई
टिश्यू ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाएगा कैटेकोलामीन्स के लिए, तो एरिथमिया स्पेशली हार्ट, तो उस वक्त एरिथमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. Then what is the effect at the respiratory system? All remember, all volatile anesthetic possess bronchodilating properties and respiratory depression. दोनों एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेंगे ये एजेंट्स, और उसके साथ साथ ब्रोंकोडायलेटेशन कॉज करेंगे. अब आइसोफ्लोरेन और डेस्फ्लोरेन जो दो ये वोलेटाइल एजेंट्स हैं, these are basically having pungent effect. So these pungent effect of the volatile anesthetic agents can lead to bronchospasm. So you have to be very careful if the patient is already asthmatic or having bronchospasm. You can't give these isoflurane and desflurane, and you will prefer the other agents. These agents are halothane, sevoflurane, and nitrous oxide, because these are the agents which are having less effect at the bronchial muscles and having bronchodilation effect. So if the patient is having airway problem, your choice will be halothane, sevoflurane, and nitrous oxide. What is the effect of these anesthetic agents at mucociliary function of the airways? These agents are depressing the action of these mucus production as well as mucociliary function. कौन सा होता है कि cilia जो bronchial airways में होती हैं, वो prevent करते हैं accumulation of mucus, और different जो foreign particles हैं उनको expel out करते हैं. Now if this function is depressed by giving the general anesthetic agents, so there will be increased risk of infection, hypoxemia and atelectasis. ठीक है, क्योंकि म्यूकस भी एक्सपेल आउट नहीं होगा और डिफरेंट फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक्सपेल आउट नहीं होंगे एयरवेज से, और ज़्यादा चांस होगा कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन कैरी कर ले या लंग कोलैप्स हो जाए. Then what is the effect on the brain? There is dual effect at the brain. ये क्या ड्यूल इफेक्ट है कि डिक्रीज सेरिब्रल जो मेटाबॉलिक रेट है, इट विल लीड टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो within the brain, and as well as there is cerebral vasodilatation which causes increase in the cerebral blood flow. अब एक तरफ मेटाबॉलिक रेट के डिक्रीज होने से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी साइड पे वेजोडाइलेटेशन की वजह से इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो है. तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये एक दूसरे को मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस कर देंगी. इफ द पेशेंट इज विद इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर कोई ट्रॉमा है, पेशेंट को सेरिब्रल लीजन है और उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो हाई कंसंट्रेशंस ऑफ वोलेटाइल एनेस्थेटिक इज अनडिजायरेबल. आप यूज नहीं कर सकते वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट्स को, क्योंकि रिस्क होगा कि उसमें अगर ऑलरेडी रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है और आप साथ एनेस्थेटिक एजेंट्स भी दे रहे हैं, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ज्यादा हो सकता है, जो कि पेशेंट के लिए डैमेजिंग होगा. And what is the effect on kidney? All inhaled anesthetic agents decrease the GFR and urine flow, as well as decrease in the renal flow. So these anesthetics are having basically depressing effect on the kidneys. Then is the effect on the liver. All agents decrease portal vein blood flow. However, total hepatic blood flow may be relatively preserved. And there is transient changes in the liver enzymes. ठीक है, liver enzymes में transient changes हो सकती हैं, especially if you are using the halothane. Halothane toxicity usually हो जाती है, different इसके जो metabolites हैं वो hepatocellular damage करते हैं, and due to the hepatocellular damage, the liver enzymes may be raised. The next effect is muscle relaxation. Remember that halogenated inhaled anesthetic cause the relaxation of the muscles. ठीक है,
डिप्रेसिंग इफेक्ट है सारी जगहों पे बेसिकली इन इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स का। तो यूट्राइन रिलैक्सेशन कॉज करेंगे और ये इफेक्ट है हम यूज करते हैं यूट्राइन रिलैक्सेशन इन डूइंग द इंटर यूट्राइन फीटल मैनिपुलेशन। अगर फीटस की पोजीशन जो है वो करेक्ट कर टॉक्सिसिटी एक्यूट और क्रॉनिक में हम मेनली डिवाइड करते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी होगी मेनली विद हैलोथेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉक्सिसिटी इज 1:20,000 to 35,000 and mechanism is basically involving the cell damage by the free radicals produced by the halothane and the damage is direct hepatocellular damage or it is basically immune mediated responsiveness which lead to the hepatocellular damage. So halothane toxicity, that is hepatotoxicity, is very important and frequently asked in the examination. Then nephrotoxicity with different inhaled anesthetic agents. These are methoxyfluorine and fluorine and sevoflurane, basically due to the fluoride component of these agents. Then hematotoxicity with nitrous oxide, prolonged exposure decreases the methionine synthase activity. This enzyme is required for the synthesis of the iron in the body. So there is megaloblastic anemia if you are using nitrous oxide for prolonged period. All anesthetic agents produce carbon monoxide and this carbon monoxide binds to hemoglobin with high affinity, reducing the oxygen delivery to the tissues. So anesthetic machine है उसमें carbon monoxide agent जो है वो पेशेंट्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके तो टिश्यू डिलीवरी ऑक्सीजन की जो है वो कम करती है ये एजेंट्स. Then next important toxic effect is malignant hyperthermia. It is very important, frequently asked in the examination. This is rare event with genetic basis and 70% lethal if untreated. And risk in adults is 1:50,000 and 1:15,000 risk in the children. These are basically produced with halothane, isoflurane, and desflurane. These inhaled anesthetic agents cause the malignant hyperthermia frequently. And basically, what is this disease? It is hypercatabolic reaction involving the causing the muscle rigidity, tachypnea, increased oxygen consumption, and carbon dioxide generation. And there may be cardiac dysrhythmias, electrolyte imbalance, and massive increase in core body temperature. And what is the reason of this reaction? This is due to the increased mobilization of intracellular calcium in the muscles. ठीक है, आपको जब मैंने डिस्कस किया था हार्ट फेलियर उसमें मैंने आपको कार्डियक सेल का स्ट्रक्चर बताया था और उसमें मैं बताया था कि कैल्शियम जो है वो रेन्यूलिन रिसेप्टर्स के थ्रू रिलीज होती है इनटू द सेल मसल सेल. तो इस कंडीशन में जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज रिलीज होती है कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनटू द सेल एंड दिस लीड्स टू द hypercatabolic reaction. This is called malignant hyperthermia. And what is the treatment of this malignant hyperthermia? Basically, we give the dantrolene. What is the action of this dantrolene? It inhibits the calcium transport, blocking the ranodine receptor from which this calcium is released. So dantrolene is main drug treatment of this malignant hyperthermia. And the other management is to decrease the temperature of the body, give oxygen and give the muscle relaxants. So this can be asked in the examination and treatment is also asked in the SEQ. This malignant hyperthermia is due to the mutation in the gene coding for skeletal muscle ranodine receptor. And
calcium release channel on the sarcoplasmic reticula. And there is mutant allele of gene encoding the alpha 1 subunit of human skeletal muscle L type voltage dependent calcium channel. ठीक है, skeletal muscle में और जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन होती है रेनोडिन रिसेप्टर में, तो तब ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है बॉडी में अगर आप इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट्स दे रहे हैं उसमें। और अगर आप साथ जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है दैट इज स्पेशली सक्सिनाइल कोलिन, तो इन दोनों एजेंट्स के साथ ये जो कंडीशन है उसमें पेशेंट में डेवलप हो सकती है। और ये आपको हिस्ट्री में पेशेंट से पूछना है या आपने उसका केयरफुल मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट को। ट्रिगरिंग एजेंट्स फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये जो ड्रग्स हैं डिफरेंट जो ट्रिगर करेंगे इस कंडीशंस को वो हैं टिओफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, हैलोथेन, एनफ्लुरेन, मिथॉक्सीफ्लुरेन एंड सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन आपने डिटेल में पढ़ी है। और इसके साथ जो नॉन ट्रिगरिंग एजेंट्स हैं जो आप सेफली दे सकते हैं वो कौन से हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स, नारकोटिक्स, केटामीन, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोपोफोल, टोमिडेट, बेंजोडाइजेपिन्स एंड नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में म्यूटाजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी, ये आप मोस्टली जो है इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के साथ देख सकते हैं। Then clinical uses of inhaled anesthetics कौन से होंगे? These agents are used in combination with intravenous anesthetic agents। ठीक है, inhaled anesthetics को और intravenous को combination form में mostly use करते हैं, उसको हम कहते हैं balanced anesthesia। हेलोथेन जो है वो स्टिल यूज हो रहा है पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया के लिए। एडवांटेजेस का क्या है? स्वीट स्मेल है, लैक ऑफ इरिटेशन, और डिसएडवांटेज में इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट मसल रिलैक्सेशन कॉज करती है हेलोथेन, और हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, और उसके साथ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है। तो ये आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हेलोथेन के जरूर आने चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड is commonly used with another inhaled or IV anesthetic। मिथॉक्सीफ्लोरेन को हम यूज करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया के लिए। Now, two important terms you have to understand. One is second gas effect. What is this? This is the rapid uptake of high concentrations of nitrous oxide produces an increase in alveolar concentration of oxygen and the accompanying volatile anesthetic agent. Now, if imagine that you are giving the three gases, one is nitrous oxide, second हेलोथेन and third is oxygen। आप ये तीन गैसेस को कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे रहे हैं पेशेंट को। अब होता क्या है कि जब आपने स्टार्ट किया है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज लेस सॉल्युबल इन द ब्लड। तो क्या होगा कि वो रैपिडली उसकी डिफ्यूजन होगी फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड एंड देन इनटू द ब्रेन। तो जो रिमेनिंग गैसेस हैं ऑक्सीजन और हेलोथेन उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द nitrous oxide which is left in the alveoli। ठीक है, this is called second gas effect। Now what is diffusion hypoxia? When you stop giving these anesthetic agents, for example halothane, oxygen and nitrous oxide in combination, जब आप इसके इंडक्शन को स्टॉप करते हैं तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रैपिडली ब्रेन को लीव करेगी क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है। जब वो रैपिडली लीव करती है और एल्वियोलाई में पहुंचती है तो अगर कंपैरिजन करें उन तीन गैसेस का तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द नाइट्रस ऑक्साइड। तो उसमें एक स्टेट प्रोड्यूस होती है उसको हाइपोक्सिक स्टेट कहते हैं कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है एल्वियोलाई में। सो एनेस्थेटिस्ट हैज टू गिव द more oxygen, that is 100% oxygen to the patient to compensate this hypoxic effect।
So this is called diffusional hypoxia, and it is seen with the nitrous oxide when you are giving the nitrous oxide as in inhaled anesthetic agent. Then are the intravenous anesthetic agents. Intravenous anesthetic agents are widely used to facilitate rapid induction of anesthesia and have largely replaced the inhalational anesthetic agents. तो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का पता होना चाहिए आपको. बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या है? It is combination of the drugs, inhaled anesthetics, intravenous sedative hypnotics, opioids और neuromuscular blocking drugs. Neuromuscular blocking drugs भी पढ़ चुके हैं, sedative hypnotics भी पढ़ चुके हैं. अब आप inhaled anesthetic agents पढ़ रहे हैं और opioids भी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये intravenous anesthetic agents हैं जो आप दे सकते हैं to produce anesthesia. This is the table given in your book, and very good table showing different pharmacokinetic parameters of different agents which are used intravenously. ये आप खुद डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसका ड्यूरेशन कितना है, प्रोटीन बाइंडिंग कितनी है, क्लियरेंस कितनी है. Now we will discuss some important drugs one by one. सबसे पहले बार्बिचुरेट्स में थायोपेंटोन सोडियम, methoxytol और thiamycin हम यूज करते हैं for the anesthetic agents. And now these barbiturates have been largely replaced as induction agents by propofol. ठीक है, लेकिन अभी भी थायोपेंटोल सोडियम यूज करते हैं for the induction of anesthesia. Very high lipid solubility है इस एजेंट की, most commonly used for induction of anesthesia. और rapid onset of action क्यों है? क्योंकि ये lipid soluble drug है and rapidly crosses the blood brain barrier. ठीक है, plasma brain equilibrium occurs rapidly. 1 minute में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट. ठीक है, अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म इसका बहुत कम होता है. मेनली दिस थायोपेंटोन सोडियम इज एलिमिनेटेड थ्रू द रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ी थी जनरल फार्मा में. रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि व्हेन द ड्रग रीचेस टू द ब्रेन, इट इज अगेन reaches in the circulation and distributed to the other tissues, less perfused tissues of the body, for example muscles and fat etc. This is called redistribution. So mainly elimination इसकी जो है वो redistribution से होती है. route इसकी intravenous है and it is mainly used to induce the anesthesia. methoxytol एजेंट जो है वो हम यूज करते हैं मेंटली चैलेंज पेशेंट में और अनकोऑपरेटिव पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, और पर रेक्टम उसको यूज करते हैं methoxytol. Now cerebral effects are mainly it is much more desirable drug for use in patient with cerebral lesions because intracranial pressure and blood volume are not increased. जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर raised intracranial pressure है तो वो एजेंट्स जो सेरिब्रल फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं वो हमने यूज नहीं करना. लेकिन थायोपेंटोन सोडियम को अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं इसको, और इसको एज एंटी कन्वल्सेंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये EEG एक्टिविटी को कम करती है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन में हो रही है उसको कम करती है. सो दिस एजेंट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट द convulsions. CVS effect में decrease in systemic blood pressure and negative inotropic effect, respiratory depression cause करेगी. Other effects में अगर intra-arterial injection accidentally दे देते हैं तो क्या होगा कि there is locally vasoconstriction and pain and gangrene may develop. And treatment is blockade of sympathetic nervous system. Stellate ganglion आपने पढ़ा हुआ है. Stellate ganglion in the neck can be blocked with the local anesthetic. जब इसको ब्लॉक करेंगे तो upper extremities में जो painful condition है, पेन होगी severe, वो कम हो जाएगी. और अगर आप इसको इंट्रावीनस इंजेक्शन के तौर पे दे रहे हैं और एक्स्ट्राविजेशन हो गई है, लीकिंग हो गई है अराउंड द वेन, तो उसके लिए हम लोकल इंजेक्शन देते हैं लाइडोकेन का. ठीक है, टू डाइल्यूट द बार्बिचुरेट कंसंट्रेशन.
एडवर्स इफेक्ट्स में इंटरमिटेंट पोर्टफायरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी, और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि नेक्रोसिस, अल्सरेशन, गैंग्रीन हो सकता है। नाउ आर द बेंजोडाइजेपीन्स। ये कौन कौन से हम दे सकते हैं? डायजेपम, लोराजेपम और मिडाजोलैम। ठीक है, और इसके लिए एंटेरोग्रेड एमनीजिया हो सकता है, पोस्ट एनेस्थेटिक रिकवरी को प्रोलॉन्ग कर सकती है बेंजोडाइजेपीन्स। मिडाजोलैम जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं बिकॉज दिस एजेंट इज हैविंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। यूजेस इसके हैं प्री मेडिकेशन के तौर पे, इंट्राऑपरेटिव सिडेशन और बैलेंस्ड एनेस्थीसिया के लिए भी यूज करते हैं इनको। फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में, सारे यूजेस वही हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन, फैंटानिल, सुफेंटानिल, एल्फेंटानिल और रेमिफेंटानिल, ये एजेंट्स यूज करते हैं, और खास तौर पे इनको देते हैं आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, पोस्ट ऑप में जब पेशेंट जाता है तो रिलीफ पेन, वी यूज दीज एजेंट्स, बट कैन आल्सो बी यूज इंट्राऑपरेटिवली टू डिक्रीज द पेन। अब दो टर्म्स आपने याद रखनी है यहाँ पे, न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया और न्यूरो लेप्ट एनेस्थीसिया। न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया के लिए हम फैंटानिल और ड्रोपेरिडोल, दिस इज एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो इनको कंबाइन करते हैं, करके देते हैं, उसको कहते हैं न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया। और न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया कब टर्म यूज करेंगे? जब फैंटानिल, ड्रोपेरिडोल और नाइट्रस ऑक्साइड को साथ ऐड कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं दिस इज न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। ठीक है। Now, propofol, very important agent, is alkyl phenol with hypnotic properties and formulated as an emulsion containing 10% soybean oil, glycerol and lecithin. ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रोपोफॉल के, और फ्रीक्वेंटली यूज होता है फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एज वेल एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। और एक हम बैक्टीरियल ग्रोथ रिटार्डेंट भी ऐड करते हैं प्रोपोफॉल में। आप देखें, अपने ओटी में जाके देखें तो वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट जो है वो यूज कर रहा होगा प्रोपोफॉल के नाम से ड्रग फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एंड दिस इज मिल्की वाइट एंड स्लाइटली विस्कस सॉल्यूशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपने याद रखने हैं। प्रोपोफॉल के रैपिड इंडक्शन है, रैपिड रिकवरी है, and patient feel better in immediate post-operative period. Anti-emetic effect, very important effect. कि after the anesthesia, patient don't have emesis. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। यूज फॉर बोथ इंडक्शन एंड मेंटेनेंस component of balanced anesthesia, may be used with opioids, and unique place in burn units and intensive care unit. इसको इस एनेस्थेटिक एजेंट को हम यूज करते हैं डे सर्जरी के लिए। डे सर्जरी मीन के पेशेंट आपने मॉर्निंग में अगर एडमिट किया है तो उसको माइनर प्रोसीजर के लिए प्रोपोफॉल को यूज करते हैं, और इवनिंग में उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो प्रोपोफॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि गाबा मीडिएटेड पोटेंशिएशन, जो हमने बेंजोडाइजेपीन्स और बारबिचुरेट का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो इट कॉजेस पोटेंशिएशन ऑफ क्लोराइड current mediated through GABA A receptor complex. Disadvantages हैं पेन और बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इसकी। और हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। जी बेटा, कितना टाइम है मेरे पास? 2 मिनट्स लेफ्ट मैम। ठीक है बेटे, मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, अदर प्रॉपर्टीज हैं इसकी, एक्सटेंसिव प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म बाय लिवर इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स में डिक्रीज बीपी, डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेसोडाइलेटिंग इफेक्ट है, एंड डिप्रेस द रिसेप्टर रिफ्लेक्स। एपनिया में भी कॉज्ड बाय द प्रोपोफॉल। देन केटामीन, ये इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपको, इनको आपने जरूर अच्छी तरह से याद रखना है। दिस इज फेनसाइक्लिडीन डेरिवेटिव एंड इट कॉजेस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या है कि ये पैरालिसिस करता है मसल्स की टू रिलैक्स द मसल्स। ठीक है, लेकिन पेशेंट में भी may give response to vocal stimulus. There is catatonia, cataplexy, amnesia, analgesia without actual loss of consciousness. ठीक है,
mechanism है इसकी by blockade of the excitatory neurotransmitter that is glutamic acid at NMDA receptor subtype. Most frequently used for pediatric procedures and adult patient at risk for bronchospasm or hypotension. ठीक है, रैपिड ऑनसेट होता है और इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, रेक्टल और ओरल फॉर्मुलेशंस पे दिया जा सकता है इसको. Now pharmacological activities Sorry to CDS interrupt you, पे. ma'am. The lecture time is over now. टाइम इज ओवर. अच्छा, Yes, चलो ma'am. बेटे, केटामीन इम्पोर्टेंट है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. और एक दो और, एटोमीडेट और डेक्समेडिटोमिडीन, ये भी आप पढ़ लें. एक दो हमारी जो है वो रह गए हैं डिस्कस करने वाली. और एक और मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देती हूँ. सिडेशन बेस्ड एनेस्थेटिक टेक्निक है, और दूसरा है कॉन्शियस सिडेशन और सिडेशन इन आईसीयू. ये आपकी बुक में तीनों टर्म्स दी हुई हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपको डेफिनेशंस पूछ सकती हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.